اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ شوکت ترین کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس یوٹیلیٹی سٹورز پر 3 بنیادی اشیاء مہنگی کرنے کی منظوری دی، جس میں چینی کی فی کلو قیمت میں 17 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے چینی 68 روپے کی بجائے 85 روپے کلو میں دستیاب ہوگی۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا مزید 150 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 800 سے بڑھا کر 950 روپے ہو چکا ہے۔ فی کلو گھی کی قیمت میں بھی 90 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 170 روپے کلو ملنے والا گھی اب 260 روپے کلو میں دستیاب ہوگا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں منظوری دی گئی ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر 3 بنیادی اشیاء مہنگی کی جا رہی ہیں۔ چینی کی فی کلو قیمت میں 17 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ چینی 68 روپے کی بجائے 85 روپے کلو میں دستیاب ہوگی، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ 20 کلو آٹے کا تھیلا مزید 150 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ فی کلو گھی کی قیمت میں 90 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ 170 روپے کلو ملنے والا گھی اب 260 روپے کلو میں دستیاب ہوگا۔ نیا حکم نامہ ہے جو کہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ڈیٹیلز دیں گے جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنید ریاض، بتائیے گا کیا محرکات ہیں، کیوں یہ فیصلہ کیا گیا؟ عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور شہریوں پر مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا گیا۔ جی، مہنگائی میں ہوشربا اضافہ دکھنے میں آ رہا ہے، اور عید آنے سے قبل ہی جو ہے وہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا، اور وزیر خزانہ کی زیر صدارت جو رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اقتصادی کمیٹی کا، اس میں فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ بنیادی چیزیں آٹا، گھی، چینی جو کہ ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں، ان میں ہوشربا جو ہے وہ اضافہ کر دیا جائے۔ اگر چینی کی قیمت میں دیکھا جائے اضافہ تو 17 روپے اضافہ کیا گیا، اور اب 68 روپے کی بجائے 85 روپے کلو جو ہے وہ فروخت ہوگی، اور 20 کلو آٹے کا تھیلا میں 150 روپے کا اضافہ کیا گیا، جو 800 روپے میں ملتا تھا اب وہ 950 روپے میں ملے گا۔ اور دوسری جانب اگر گھی کی بات کی جائے تو 90 روپے کلو جو ہے گھی کی قیمت میں اضافہ کیا گیا، اور وہ 170 روپے کی بجائے 260 روپے کلو ملے گا۔ اسی والے سے ہم یہاں پر شہریوں سے بھی بات کرتے ہیں جو یوٹیلیٹی سٹور پر اس وقت موجود ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، اس وقت آپ یوٹیلیٹی سٹور پر موجود ہیں، جو اضافہ ہوا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، یہ سراسر ناانصافی ہے، چونکہ 2020-21 کا جو بجٹ آیا ہے اس میں کو بالکل ریلیف نہیں دیا گیا، اور یوٹیلیٹی سٹور میں جو رمضان المبارک میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ہمیں ریلیف دیا تھا اور بہت سستی چیزیں مل رہی تھی، اور اس کا ایکشن لیا تھا عمران خان صاحب نے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن پہ، تو اس کو سراسر نظر انداز کر کے ہمارے وزیر خزانہ صاحب جو ہیں پنجاب کے اور وفاق کے، انہوں نے اس پہ ذرا سی توجہ نہیں دی، اور اب ہر چیز اب چینی پہ، گھی پہ، آٹے پہ بے انتہا اضافہ کر دیا، جو کہ ہمارا ایک سیلری پیشہ انسان ہے تو اس پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ ہماری سیلریز میں بالکل اضافہ نہیں کیا گیا، بلکہ کچھ کٹوتیاں بھی کی گئی ہیں، جس وجہ سے ہمیں اپنے بجٹ بنانے میں اور سیلریز میں چلانے میں گھر میں بہت مشکلات آ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو کہا تھا کہ اگلے 3 سال جو ہے وہ ہم مہنگائی کے اوپر کنٹرول کریں گے اور ان سستی چیزیں جو عوام کو فراہم کریں گے، کیا ایسی کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ جی، یہ چیز نظر رمضان المبارک میں تو آئی تھی، لیکن اس کے بعد یہ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کوئی کام نہیں ہمیں نظر آ رہا۔ یوٹیلیٹی خاص طور پہ عوام ہم جیسا غریب طبقہ رخ کرتا ہے یوٹیلیٹی سٹور کا، اگر ادھر بھی اشیاء خرد و نوش ہمیں باہر کے مناسب ریٹ پہ نہیں ملنی، باہر کے مطابق ملنی ہے، تو ہمیں یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور گورنمنٹ کا کوئی پھر ہمیں ریلیف نہیں ہے۔ اور سبسڈی دی جا رہی ہے یہاں پہ؟ نہیں، سبسڈی اب بالکل جو باہر کی چیز ہیں، باہر کے ریٹس اور ادھر کے جو اس دفعہ کا ہے بجٹ کے بعد بالکل ایکول نظر آ رہے ہیں ابھی تو۔ جی، آپ نے بات سنی، یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عوام جو ہے وہ تنگ اور عاجز آ چکی ہے، اور جو ریٹس میں اضافہ کیا گیا آٹا گھی استعمال ہوتی ہے اس کو بھی انہوں نے تشویش کا کیا کہ حکومت نے آئندہ 3 سال فراہم کیا جائے گا، جائیں گے تمام ختم کر دی ہیں، اور بھی گئے ہیں چیزوں میں خاص۔ جنید ریاض، آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، گرم مسالہ جات کی مانگ بھی بڑھ چکی ہے۔ اکبری منڈی میں گرم مسالے کی خریداری کے لیے شہریوں کا رش ہے۔ گرم مسالہ جات کے بغیر لذیذ پکوان نہیں بن سکتے، شہریوں کا ایسا کہنا ہے۔ لونگ کی قیمت 300 روپے بڑھ کر 1600 روپے کلو ہو چکی ہے۔ زیرہ 45 روپے سستا ہو کر 450 روپے فی کلو گرام ہو گیا ہے۔ اسی طرح کالی مرچ 80 روپے سستی ہو کر 780 روپے کلو ہو گئی ہے، جبکہ سونف
270 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रही है। शहजाद खान अब्दाली हमारे से मौजूद है। शहजाद खान बताइएगा, मसाला जात की कीमतों में भी उतार चढ़ाव जारी है? और जी बिल्कुल ईद उल अजहा की आमद है और शहरियों ने पकवानों की तैयारी के लिए गर्म मसाला जात खरीदने की गरज से अकबरी मंडी का रुख कर लिया है और इस वक्त अकबरी मंडी में गर्म मसाला जात की खरीदारी में तेजी देखी जा रही है। अकबरी मंडी में गर्म मसालों की खरीदारी के लिए शहरियों और शहर के किराना फरोशों का बड़ा रश देखा जा रहा है और इस हवाले से आपको बताते चले कीमतों में भी उतार चढ़ाव इस हवाले से देखने में आ रहा है। लौंग की कीमत 300 रुपये फी किलोग्राम बढ़ने के बाद 1600 रुपये तक जा पहुंची है और इसके अलावा जो जीरा, काली मिर्च और सौंफ है, इसकी कीमतों में कमी देखी जा रही है। जीरा 45 रुपये सस्ता होकर 450 रुपये फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है, जबकि काली मिर्च 80 रुपये सस्ती होने के बाद 780 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से अकबरी मंडी के अंदर फरोख्त की जा रही है। और इसी तरह सौंफ की कीमत जो है ये भी 50 से 60 रुपये कम होकर 270 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रही है। और इस वक्त अकबरी मंडी में खुले मसाला जात की दुकानों पे अच्छा खासा रश जो है वो देखा जा रहा है और शहरियों के साथ साथ शहर के किराना फरोश भी गर्म मसाला जात की खरीदारी कर रहे हैं ताकि ईद पर वो गर्म मसाला जात फरोख्त करें और शहरी जो है वो अपने घरों में लजीज पकवान जो है वो तैयार कर सकें। जी, गरम मसाला जात की फरोख्त में इजाफा देखने में आ रहा है। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। अकबरी मंडी में गर्म मसाले की खरीदारी के लिए शहरियों का रश लग चुका है और इस हवाले से कीमतें भी जो हैं वो तब्दील होती नजर आ रही हैं, तब्दीली नजर आ रही है कीमतों में और उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। अकबरी मंडी में गर्म मसाले की खरीदारी के लिए शहरियों का रश है। गर्म मसाला जात के बगैर लजीज पकवान नहीं बन सकते। लौंग की कीमत 300 रुपये बढ़कर 1600 रुपये किलो हो चुकी है। जीरा 45 रुपये सस्ता होने के बाद 450 रुपये फी किलोग्राम में फरोख्त किया जा रहा है। काली मिर्च 80 रुपये सस्ती होकर 780 रुपये किलो हो गई। सौंफ 270 रुपये फी किलोग्राम में फरोख्त की जा रही है। अकबरी मंडी में इस वक्त खरीदारों का रश देखने में आ रहा है और खरीदार इस वक्त जो है वो गर्म मसाले की खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी जानवरों की महंगी कीमतों के बायस खरीदार ना होने के बराबर हैं। इस वक्त कहा जा रहा है कि महंगाई जो है वो उरूज पर नजर आ रही है। मवेशी मंडियों में जानवरों के दाम बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा खरीदार ना होने के बराबर हैं। सर, बात करेंगे उमर डार से। उमर डार बताइएगा, जानवरों की कीमतें ज्यादा हैं, व्यापारी क्या कह रहे हैं, खरीदार क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पाइन एवेन्यू की मवेशी मंडी में मौजूद हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कुर्बानी के जानवरों की तो एक बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जो खरीदार हैं वो ना होने के बराबर हैं और उसकी एक बड़ी वजह है यहाँ पे कुर्बानी के जानवरों की जो है महंगी कीमतें। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। जी, ये बताइएगा कि ये जो सारी एक सूरत हाल है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर, मैं ये कहूँगा कि मैं अभी खुद देखिए सुबह से इधर मवेशी मंडी में घूम रहा हूँ जानवर लेने के लिए, पर मुझे अपनी रेंज की कोई जानवर मिल ही नहीं रहा। कि जाहिर सी बात है कि एक मुतवस्सिल तबका है जिसकी लिमिटेड सी सैलरीज हैं, उसके लिमिटेड से वसाइल हैं, प्लस उसका फैमिली एक्सपेंस है जिसमें उसने अपने फैमिली एक्सपेंस को भी देखना है, प्लस उसने कुर्बानी भी करनी है। तो वो मतलब कैसे मैनेज कर पाएगा कि सुबह से मेरी मतलब एक लिमिटेड सी रेंज बना के मैं आया था कि मैं इस रेंज में जानवर लेके तो कुर्बानी कर लूँगा, पर यहाँ पे आके हालात पता चला तो जितनी रेंज में अपनी बना के लिए आया था उतने में तो इधर बकरे मिल रहे हैं। किस रेंज में आप जानवर लेने आते हैं? मेरी रेंज थी कि मैं 80 to 85 तक कोई जानवर मुनासिब सा जानवर देख के ले लूँगा और कुर्बानी कर लूँगा, पर जब यहाँ पे आके मैंने हालात देखे, ये सिस्टम देखा, तो वो तो मतलब बहुत एक्सीड कर चुका है कि मतलब आप नहीं खरीद सकते या आप नहीं कुर्बानी कर सकते, आपके लिए मसाइल हैं बहुत ज़्यादा। महंगाई के हालात ओवरऑल ही ऐसे हैं, तो मतलब हम तो ख्वार हो रहे हैं सुबह से गर्मी में, ये हालात देखे हमारे गर्मी पसीने की वजह से, पर नहीं जानवर मिल रहा। अभी फिर देख रहे हैं कि क्या पता कुछ नसीब में या किस्मत में हो तो कुछ मिल जाए। जी, तो ये हमारे साथ जो थे एक शहरी मौजूद थे जिनका कहना था कि जो मुतवस्सत तबके के अफराद हैं उनकी कुव्वत खरीद से जो कुर्बानी के जानवरों की बाहर हो चुकी हैं और इस वक्त जो जी महंगाई यकीनन हो चुकी है, शहरी भी परेशान है और बजट भी डिस्टर्ब हुए हुए हैं। उमर डार, आपका बहुत शुक्रिया। पुलिस में मजीद 5000 से ज्यादा कांस्टेबल की भर्तियों के लिए आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना भर्तियों पर पाबंदी खत्म करने की मंजूरी दे दी है। कांस्टेबल के साथ साथ 654 ट्रैफिक असिस्टेंट्स भी भर्ती किए जाएंगे। इस पर बात करेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा इस हवाले से। पुलिस की तरफ से एक महकमा दाखिला को समरी साल की गई थी और कहा गया था कि जो इससे पहले माली साल में
10,000 से ज़ायद कांस्टेबल भर्ती करने की मंजूरी दी गई थी, तो अब मजीद 5,000 कांस्टेबल भर्ती करने की इजाज़त जो है वो भी लेके दी जाए। तो उस पर महकमा दाखिला पंजाब ने स्टैंडिंग कमेटी बैक खजाना को ये एजेंडा पेश किया था कि मजीद 5,000 कांस्टेबल भर्ती करने के हवाले से जो एक ऑलरेडी पाबंदी है पंजाब हुकूमत ने नई भर्तियों पर आयद कर रखी है, वो पाबंदी हटाई जाए। तो उस पर स्टैंडिंग कमेटी ने बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी है और साथ ही मशरूत की है इसकी मंजूरी कैबिनेट कमेटी से, जिसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब इसके कैबिनेट कमेटी को चेयर करेंगे और उसमें बाकायदा भर्तियों की इजाज़त देंगे। तो इसमें कांस्टेबल के साथ साथ ट्रैफिक असिस्टेंट जो है 654 वो भी भर्ती किए जाएंगे, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन में, जहाँ पर आज स्टैंडिंग कमेटी ने ये मंजूरी दी। तो इससे पहले भी 10,000 से ज़ायद जो है वो भर्तियों की इजाज़त दी जा चुकी है कांस्टेबल की, जिसका प्रोसेस जो है वो जारी है। और अब जैसे ही वज़ीर-ए-आला पंजाब कैबिनेट कमेटी ने मजीद 5,000 भर्तियों के हवाले से इजाज़त देंगे पंजाब पुलिस को, तो इनका भी आगाज़ कर दिया जाएगा। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि कैदियों और मुलाकातियों के लिए अच्छी खबर है, ईद से पहले 2 रोज़ आम मुलाकात की इजाज़त, जबकि ईद के दिनों में सिर्फ खाने देने की इजाज़त होगी। आईजी जेल ने आम मुलाकात और ईद के मौके पर जेल इंतजामिया की जानिब से कैदियों को खुसूसी खाना फराहम करने की हिदायत कर दी है। मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं, जान लेते हैं अली साही से। जी अली साही, बताइएगा क्या अहकाम दिए गए? जी बिल्कुल, ईद उल जुहा के मौका पर आईजी जेल खाना जात नगर शाह सुन बेग की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि तमाम जेलों में हफ्ते के रोज़ और पीर के रोज़ जो भी मुलाकाती हैं उनको कैदियों के साथ मुलाकात करवाई जाए और आम मुलाकात की इजाज़त दी जाए। सुपरिटेंडेंट्स खुद इंतज़ारगाह में मौजूद रहें और जितने भी मुलाकाती हों हर सूरत में उनकी मुलाकात यकीनी बनाई जाए। इसके साथ साथ ईद के मौका पर तमाम कैदियों को तीनों रोज़ खसूसी खाने फराहम किए जाएँ और इसके साथ सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए जाएँ। सुपरिटेंडेंट जेल जो हैं वो तीनों दिन अपने जेल में चक्कर लगाएँ और हर सूरत में एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ईद के तीनों रोज़ जेल में मौजूद होना चाहिए। तो इसी हवाले से आईजी जेल खाना जात की जानब से तमाम सुपरिटेंडेंट्स को डायरेक्शन जारी कर दी गई हैं और इस पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। जी अली साहिब, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर 2023 के इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। सरकारी ओहदा आड़े तो नहीं आएगा, चौधरी मोहम्मद सरवर ने कानूनी मुशावरत शुरू कर दी है। इस पर बात करेंगे, कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफ़ी भट्ट, इस मामले के हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? गवर्नर पंजाब जो है वो 2023 के इंतखाबात में साहिवाल से इलेक्शन लड़ना चाहता है और इस सिलसिले में वो काफी अच्छे से अपनी इंतखाबी कैंपेन भी चलाए हुए हैं, लेकिन गवर्नर पंजाब की हैसियत से वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। अब आए सिलसिले में क्या कहता है, जिसे 2 साल तक सरकार को रखने वाला 2 साल तक इलेक्शन में हिस्सा नहीं दे सकता इंतखाबी सियासत में, इसके ऊपर गवर्नर पंजाब अब कानूनी मुशावरत कर रहे हैं वकला के साथ के साथ कि क्या वो होता छोड़े, क्या 2 साल की मुद्दत की बाइंडिंग है ये उनके रास्ते में रुकावट तो नहीं पड़ेगी। 1 से 2 महीने के अंदर जो है गवर्नर पंजाब ने इस बात का फैसला करना है कि क्या उन्होंने इंतखाबी सियासत से जाना है क्या गवर्नर का ओहदा बरकरार रखना है, इसके ऊपर वो मुशावरत कर रहे हैं। और इंतखाबी सियासत से जाने के हवाले से गवर्नर पंजाब ने इजाजत को भी अदा कर दिया है, लेकिन फिलहाल कानूनी मुशावरत कर रही है कि 2 साल का जो अर्सा है बाइंडिंग है वो तो उनके आड़े नहीं आएगी। अगर आड़े आई तो फिर इसका फैसला जो है वो आधा ज्यादा की करेगी, क्या आप इंतखाबी सियासत से जाएंगे या 5 साल जो अपने टेन्योर है गवर्नर के पूरे करेंगे। गवर्नर पंजाब ने इस हवाले से मुशावरत शुरू कर दी है। कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। सयाहों के लिए अच्छी खबर, महकमा सियाहत ने पैकेजेस मॉल से शालामार बाग, वाघा बॉर्डर, ग्रेटर इकबाल पार्क तक सयाहों को सैर करवाने के लिए रूट्स शामिल करने का फैसला कर लिया है। सयाहों के लिए अच्छी खबर सामने आई है, इस हवाले से डिटेल्स देंगे सादिया खान से। सादिया खान, बताइएगा अमल कब से शुरू किया जाएगा इस प्लान पर? सेहत की जानिब से सेहत के शौकीन अफराद के लिए एक अच्छी खबर ये है कि पैकेजेस मॉल से लाहौर के मुख्तलिफ मकामात के लिए जो है वो रूट शामिल करने का फैसला किया गया है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे लोग जो कि लाहौर की सैर करना चाहते हैं उनको ये मौके फराहम किए जाएं। इसी हवाले से मज़ीद बात भी कर लेते हैं। मेरे साथ इशफाक डोगर साहब हैं कि रूट कहाँ कहाँ जाएगा, इसके चार्जेस क्या होंगे और पैकेजेस मॉल से लाहौर के दीगर रूट जो है वो शामिल करने का फैसला क्यों किया गया। सर, इस रूट के हवाले से बता दें। सबसे पहले तो जी मैं बड़ा आई एम वेरी मच थैंकफुल टू सिटी 42 कि आप लोग हमेशा टूरिज़म के फ़रोग के लिए अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं।
اب یہ جو کوئی 2 ہفتے پہلے جی گورنمنٹ آف پنجاب نے لاہوریوں سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم ٹورزم میں اسپیشلی سائٹ سینگ بسیز کے روٹس پہ ہم ایک ورائٹی لے کے آئیں گے. ہم نے اپنا پیکجز مال میں ہم نے اپنا ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر اور ایک ہمارا آفس وہاں پہ اسٹیبلش ہم نے کر لیا ہوا ہے جی. اور ہماری ایک بس وہاں پہ مسکر رہا کرے گی. ہمارا قذافی اسٹیڈیم والا جو ٹرمینل ہے یہاں سے ایک بس وہاں پہ ایک پیکجز مال پہ جائے گی. پھر وہاں سے جتنی بھی مانومنٹس ہیں جس میں گریٹر اقبال پارک ہے, فوڈ اسٹریٹ ہے, دلی دروازے کی مانومنٹس ہیں جو, اور شالامار باغ اور واہگہ بارڈر ہے, وہاں سے بھی ہمارا روٹس وہ چلا کرے گا. اور اس کے وہی نامنل پرائس ہے ہم نے رکھی ہوئی ہے 500 روپیز پر پرسن. لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پر اسٹوڈنٹ ہم 100 روپیز وہاں پہ ڈسکاؤنٹ کیا کریں گے. اور جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں جس میں 65 ایئرس کے ہوتے ہیں دے آر فری, اور بچے جو انڈر 5 ہوں گے وہ بھی فری ہوا کریں گے جی. اچھا, پیکجز مال کا روٹ کب آپ آپریشنل کر رہے ہیں؟ یہ ہم عید سے پہلے انشاءاللہ ہم یہ شروع کر دیں گے. وی آر ایکسپیکٹنگ کہ منڈے یا ٹیوزڈے کو اس کا باقاعدہ ہم اس کو لانچ کر دیں گے جی. آپ کیا سمجھتے ہیں پیکجز مال سے کسی دوسری طرف جانے پر لوگ خوش ہوں گے یا لاہور کی سیر کرنے پر لوگوں کا اچھا رسپانس ہوگا؟ ڈیفینیٹلی بیکاز لیکن میں ایک چیز ہے کہ پیکجز مال کی جو انتظامیہ ہے ہم ان کے بھی مشکور ہیں. انہوں نے ہمارے اس آئیڈیا کو بڑا ویلکم کیا ہے. اور لوگ جو وہاں کا جو فٹ فال ہے وہ ڈیلی وہاں پہ 20 سے 25 ہزار لوگ آتے ہیں. ان کو اس چیز کی ہم فیسلٹی دے رہے ہیں ود دی کولابریشن آف پیکجز مال. اور اس کے علاوہ جو لوگ لاہور سے باہر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں جی ان کو بھی ہم وہاں سے فیسلیٹیٹ کر رہے ہوں گے جی. جی بالکل, آپ پیکجز مال جائیں, شاپنگ کریں, اس کے بعد آپ ڈبل ڈیکر بس پر بیٹھیں. ٹھیک ہے سعدیہ, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت آپ دیکھتے رہیے City 42.